Hey guys, welcome back to my channel, The Air Hostess TV. Today's episode is about what to wear for cabin crew interview, what kind of makeup, what kind of hairstyle you should make, what kind of accessories you should wear, what kind of bag you should carry. So all these things I'm going to cover in today's episode. Also, I will be sharing few things with you which you should avoid while getting ready for cabin crew interview. I know there are a lot of airlines right now in India which are hiring. Also internationally, if we talk about Qatar Airways is also hiring. So any one of you who is planning to appear for these interviews can watch this video, and definitely this video is going to be beneficial for you. So stay tuned with me till the end. Also, if you're new to my channel, hi, my name is Romi and welcome to my channel. I have over 13 years of experience in aviation and hospitality industry. If you want to get any information, knowledge about aviation or hospitality industry, you can definitely consider subscribing to my channel. Guys, I want to share one thing with you. I have seen few females who do not like to put any kind of makeup on their skin. If you are one of them, then to be very honest, this profession is not for you, because makeup is something which you have to wear before going for flights, be it domestic airline in India or internationally. If I talk about Qatar Airways, they have a separate department called grooming department. Before you go for flight, before each and every flight you're going, there will be one lady who will be coming and checking your grooming, your makeup, your hairstyle, your uniform, whether your nails are painted, or basically each and everything. So she has all the rights. If she finds anything which is not as per the standards, she can offload you as well. So basically what I'm trying to convey here is that makeup is very important if you are planning to be a cabin. So guys, as you can see, I am all formally dressed up, like I'm going for an interview. Of course, I'm not going for any interview. I just wanted to give an idea that how you should get dressed up, your makeup, hairstyle and everything. So that's why I just groomed myself as if I'm going for an interview. So I'll start from top to bottom. सबसे पहले शुरुआत करूँगी मैं हेयर स्टाइल की. सो हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे लुक को either it will make it or break it. So it's very important कि आप जो आपका जो फ्रंट साइड है, फ्रंट जो आपका है, उसकी वो आप क्या करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके फेस कट पे. आपको क्या महसूस होता है कि आपके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फ्रंट हेयर स्टाइल चूज़ करिए. इसका मैं एग्जांपल दूंगी. कई लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे मिड पार्टीशंस बिल्कुल सूट नहीं करती है. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी मिड पार्टीशन सूट नहीं करेगी. कई लोगों के फेस पे सूट करती है, कई लोगों के फेस पे साइड पार्टीशन सूट करता है, कई लोगों के फेस पे पफ सूट करता है, like I have made, as you can see in the video. So आप ये ज़रूर इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप अपने फ्रंट जो हेयर स्टाइल है उसको कैसे बना रहे हैं. देन पीछे ऑफ कोर्स आप अपना बन बना सकते हैं, जैसे रेगुलर बन जो होता है. इट्स नथिंग, नो रॉकेट साइंस हियर. वेरी सिंपल बन यू कैन मेक, बट मेक श्योर आप थोड़ा सा टाइम लेके अपना आगे का हेयर स्टाइल में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू जैसे कल है, तो आप अपने बालों को अपना हेयर वॉश कल ना करें, उसको एक दिन पहले कर लीजिए, जिससे ये होगा कि आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे. आपका जो जूड़ा या आप जो भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो ज़्यादा नीट बन के आएगी, बिकॉज आपके बालों में तब तक एक दिन में ऑयल, जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है आपके स्कैल्प में, वो आपको एक्चुअली बेनिफिट देगा, जिससे आपकी जो हेयर स्टाइल है वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखे. तो आप अवॉइड करिए कि आप अपने सेम डे ऑफ इंटरव्यू अपने हेयर वॉश ना करें. ऑफ कोर्स आपके बाल बहुत ही नीटली टाइड होने चाहिए एंड कोई भी बेबी हेयर वगैरह कहीं से नहीं आना चाहिए. अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी इशू है तो आप कोई भी अच्छा सा हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं.
हेयर जेल और हेयर स्प्रे जिससे आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही नीट एंड टाइडी दिखे। तीसरी टिप मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगी अबाउट योर हेयर स्टाइल, वो ये है कि आप अवॉइड करें पोनी टेल बनाना, बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। आई थिंक 99% पीपल I would say that they have this problem. It's not problem, but I think 100 to 150 strands per day is okay. But हेयर फॉल का इशू जनरली होता ही है। तो अगर लेट्स से आपने पोनी टेल बनाई हुई है एंड आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो आपका कोई भी हेयर स्ट्रैंड टूट के आपकी शर्ट पे लग सकता है, आपके ब्लेज़र पे लग सकता है, तो it doesn't look good at all. So it's better कि आप उसको properly एक जूड़े में बंद करके सिक्योर करके with U-pins and all उसको प्रॉपरली बना लें, तो उससे आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके बाल बहुत ही छोटे हैं, यहाँ तक का आपका बालों का लेंथ है, तो ऑफ कोर्स आप उनको ज़रूर वॉश करिए, बिकॉज वो एनीवेज आप उन्हें ओपन ही छोड़ने हैं एंड उनको आप अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं विद एनी काइंड ऑफ हेयर स्प्रे एंड ऑल। Yeah, so this was about hairstyle. अब बात आती है about your accessories. So as you can see, मैंने simple pearl एक stud पहना है। अगर आपके पास, आप ये पहन सकते हैं, it's very simple and it looks very elegant as well. इसके साथ अगर आपके पास pearl necklace है, something like this, तो आप वो भी पहन सकते हैं। इट ऑल्सो लुक्स वेरी एलिगेंट। बट अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट, बिकॉज इट्स नथिंग विच इज़ मैंडेटरी। बट अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन वेयर इट, बट मेक श्योर कि आपका जो नेकलेस है और आपका जो ईयरिंग है उन दोनों का कलर बिल्कुल सेम मैचिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शैम्पेन कलर के शैम्पेन कलर का नेकलेस पहना है, शैम्पेन कलर का पर्ल नेकलेस पहना है एंड आपका जो ईयरिंग है वो वाइट कलर का है। प्लीज़ डू नॉट डू दिस, अदरवाइज यू कैन जस्ट अवॉइड इट, इट्स कम्प्लीटली ओके। देन आपकी नेक्स्ट एक्सेसरीज आती है, वो है वॉच। आप ऐसी वॉच पहन सकते हैं, लाइक वेरी सिंपल। प्लीज़ ऐसी वॉच अवॉइड करिए जिसमें स्टड हों, स्टोन्स हों, ये सब प्लीज़ आप अवॉइड करिए। कोई भी ब्रेसलेट स्टाइल अगर आपके पास वॉच है तो उसको भी अवॉइड करिए। आप एक सिंपल सी वॉच में कोई भी सस्ती सी एंड वेरी सिंपल एंड एलिगेंट वॉच में आप थोड़ा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो वॉच एनीवेज आपको काम आएगी कोई भी अलग इंटरव्यूज़ में। एंड इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, इफ़ यू गेट सेलेक्टेड विद द एयरलाइन, then of course you can wear it with your uniform as well, because these kind of watches you can wear. अब बात करते हैं रिंग्स की। अगर आप कोई भी रिंग्स पहनते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनको इंटरव्यू में ना पहन के जाइए। मैं जैसे कि आई यूज्ड टू वेयर येलो सफ़ायर, but then I stopped wearing it because any which ways after you get selected in the airline interview, you can't wear it with your uniform, and also eventually you have to remove those stones and all. So it's better कि आप इंटरव्यू में उनको ना पहन के जाएं। any kind of stones and all, जो भी उस तरीके की रिंग्स होती हैं आप उनको उतार ही लीजिए, तो it's better. So now let's talk about makeup. So guys, we have to understand this, that we are going for a cabin crew interview. It's a professional interview. We are not going for any wedding, we are not going for any birthday party and all. So you have to make sure that your makeup is very subtle and you should look elegant and classy. Alright, so makeup के बारे में शुरुआत करेंगे। तो makeup में of course जो basics होते हैं, फाउंडेशन आपका हो गया, मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट एंड ऑल। मैं बात करूँगी आई मेकअप की। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं आईलाइनर लगाने में तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। इट्स बेटर कि आप उसको ना लगाएं, इट्स कम्प्लीटली ओके। उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप अपना आई शेडो लगाइए, कोई भी न्यूट्रल और बहुत सटल सा कलर यूज़ करिए आई शेडो में। अगेन आई शेडो में प्लीज़ अवॉइड कलर्स लाइक ब्लू, ग्रे, ब्लैक, रेड्स, पिंक्स। प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज फ्लैशी कलर्स।
very subtle and neutral colors you can use for your eyeshadow. तो हाँ, मैं बात कर रही थी आईलाइनर की. अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है, इट इज़ कम्प्लीटली ओके. अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है आईलाइनर लगाने में, वो इतना नीट नहीं लगता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके एंड प्लीज़ अवॉइड पुटिंग इट. उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, आप काजल लगा सकते हैं एंड कोई भी न्यूट्रल कलर यूज़ कर सकते हैं आई शेडो के लिए. एंड यू कैन यूज़ मस्कारा. अगर आपको काजल लगाना भी नहीं आता है, देन ऑल्सो इट इज़ कम्प्लीटली ओके. what you can do is, आप अगेन आई शेडो लगा सकते हैं कोई भी न्यूट्रल कलर से. एंड देन आप अंदर न्यूड जो पेंसिल होती है, न्यूड आई पेंसिल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. लाइक आई हैव यूज्ड, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं. एंड उससे क्या होता है कि आपकी आंखें बहुत ब्राइटन अप दिखती हैं एंड इट गिव्स यू अ वेरी फ्रेश लुक. तो आप ये कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आप मस्कारा लगा सकते हैं. तो आप आई मेकअप में ऐसा कुछ कर सकते हैं. फिर बात आती है लिप शेड की. तो आई वुड सजेस्ट कि आप डीप कलर्स का यूज़ करें, जैसे डीप रेड, डीप पिंक, बर्गंडी. ऐसे जो डीप कलर्स होते हैं आप वो यूज़ करिए. दैट विल गिव यू मोर वेल ग्रूम्ड लुक and it looks good as well when you're going for these kind of professional interviews. Please avoid light shades, nude shades of lipsticks. ये आप avoid करिए. अगर आप कंफ्यूज है कि आपको डीप रेड लगानी चाहिए या डीप पिंक लगानी चाहिए या कौन सा कलर लगाना चाहिए, तो what I can suggest you, deep red is the color for you. डीप रेड एक ऐसा कलर है जो सारे स्किन टोन्स पे 99.9% जाता है and it looks good. It gives you a very good look as well and very neat appearance as well. So you can consider deep red color if you are confused about your lip shade. All right. So अब लिप शेड की बात करी है तो let's talk about your nail paint. So nails आपको ऑफ कोर्स आपके हाथ बहुत ही नीट साफ सुथरे होने चाहिए. इट गोज़ विदाउट सेइंग. अगर आपने लिप शेड रेड लगाया है तो मेक श्योर कि आप उसका मैचिंग कलर लगाएं अपने नेल्स पे. लाइक जैसे मैंने लगाया हुआ है रेड लिप शेड आई एम वेयरिंग, सो मैंने रेड नेल पेंट लगाया है. प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो आपका नेल पेंट है वो चिप्ड ना हो, बहुत अच्छी तरीके से आपके नेल्स पेंटेड हैं एंड एवरीथिंग. अगर आपके पास सेम नेल पेंट अवेलेबल नहीं है आपके लिपस्टिक से मैच होता हुआ, सो इट्स ओके. डोंट वरी अबाउट इट. वॉट यू कैन डू इज़, आप जो क्लियर नेल पेंट्स होते हैं, क्लियर बिल्कुल, आप वो लगा सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट आप अपने नेल्स को बिल्कुल खाली मत छोड़िएगा. आप या तो सेम कलर का नेल पेंट लगाइए, या तो फिर अगर आपके पास सेम कलर का नेल पेंट नहीं है मैचिंग टू योर लिपस्टिक, तो आप एक क्लियर नेल पेंट लगा सकते हैं. और आजकल तो काफ़ी सारी न्यूड नेल पेंट्स भी है मार्केट में. न्यूड जो आपकी बिल्कुल स्किन टोन को मैच करता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. दैट ऑल्सो लुक्स गुड. बट प्लीज़ अवॉइड, अगर आपने डीप पिंक लिपस्टिक लगाई है तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस कि आपने डीप पिंक लिपस्टिक लगाई है एंड आपने रेड नेल पेंट लगाया है. प्लीज़ डोंट डू दिस. इट डजंट लुक गुड एट ऑल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर अटायर. So guys, it is your personal responsibility. Before appearing for the interview, you should thoroughly check what if they have mentioned any specification, any specific kind of outfit or your shirt length, your skirt length or anything like that. अगर इंटरव्यू में ये मेंशन है कि आपको यही पर्टिकुलर आपको स्कर्ट पहननी है, ये पर्टिकुलर कलर पहनना है, या पर्टिकुलर स्लीव अगर इतना लेंथ की होनी चाहिए एंड ऑल, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रेस अप. बट अगर इंटरव्यू में सिर्फ ये लिखा है बिजनेस अटायर, यू हैव टू बी इन बिजनेस अटायर, तो बिजनेस अटायर भी काफ़ी तरीके के हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राइट नाउ आई एम वेयरिंग, मैंने क्या पहना है, मैं एक फुल पिक्चर भी लगाऊंगी वीडियो के साथ. मैंने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी है ब्लैक कलर की, जो कि है नी लेंथ. इसमें पेंसिल फिट है ड्रेस में
एंड उसके ऊपर मैंने ये ब्लैक कलर का ब्लेज़र डाला है. सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज बिजनेस अटायर. दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्कर्ट पहन सकते हैं, ऊपर से शर्ट पहन सकते हैं, उसके ऊपर ब्लेज़र पहन सकते हैं. अगेन आप कलर सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. कलर सिलेक्शन में अगर अगेन आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा कलर पहनूं, कौन सा कलर नहीं पहनूं, तो सबसे सेफेस्ट कलर है ब्लैक. ऑफ कोर्स इट यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक कलर. आप पूरा अटायर अपना ब्लैक रख सकते हैं. अगर आपको शर्ट में कन्फ्यूजन है तो आप वाइट शर्ट ले सकते हैं, कोई भी लाइट कलर शर्ट ले सकते हैं. प्लीज़ अवॉइड जिसमें ऐसी शर्ट जिसमें काफ़ी सारे फ्रिल्स वगैरह होते हैं आगे. अगर मुझे कोई ऐसी पिक्चर मिलेगी तो आई विल अटैच हियर. फ्रिल्स, पफ्ड स्लीव्स एंड ऑल, प्लीज़ अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. जितना आप अपने अटायर, आप मेकअप, अपना हेयर स्टाइल, जितना आप उसको सिंपल और सटल रखेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा, उतना ज़्यादा आप एलिगेंट एंड क्लासी दिखोगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉकिंग्स. अगर आपके पास ब्लैक एंड स्किन कलर स्टॉकिंग है, दोनों अवेलेबल हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्किन कलर स्टॉकिंग पहनिए. अगर आपके पास स्किन कलर स्टॉकिंग नहीं है देन ऑल्सो इट इज़ ओके, आप ब्लैक स्टॉकिंग पहन लीजिए, डजंट मैटर एट ऑल. बट मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग स्टॉकिंग. यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी स्टॉकिंग के बारे में. अगर आप यू आर नॉट यूज टू वेयरिंग स्टॉकिंग्स, तो स्टॉकिंग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत जल्दी उसके फटने के चांसेस होते हैं. तो आप ये अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ एक्स्ट्रा स्टॉकिंग ज़रूर लेके चलिए अपने बैग में. इन केस अगर इंटरव्यू के दौरान आपकी स्टॉकिंग फट जाती है या एक्सीडेंटली फट जाती है तो आप उसको जल्दी से वॉशरूम में जाके चेंज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुटवेयर. सो आई विल सजेस्ट आप फुटवेयर ऐसा चूज़ करिए जो आपको कंफर्टेबल हो एंड जिसमें आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू बहुत लंबे चल सकते हैं. दे कैन लास्ट फॉर 5 to 6 hours एज वेल. आपको उन्हीं में खड़े होके चलना है, इंटरव्यू देना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए वो बहुत कंफर्टेबल हों. फॉर योर फुटवेयर सिलेक्शन बहुत ही सिंपल रखिए, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लैक, बेज कलर, न्यूड कलर ऑल्सो. ऐसे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने फुटवेयर में. पेंसिल हिल, ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट. यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी पार्टी और वेडिंग और बर्थडे पार्टी, यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल इंटरव्यू. सो आप कुछ ऐसी हील्स ले सकते हैं लाइक दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल. इस कलर का ये क्लोज टो है एंड ऐसी आप हील्स ले सकते हैं. ये जो ऐसा फुटवेयर ले सकते हैं, इस कलर में ले सकते हैं. एंड दीज हील्स दे आर वेरी कंफर्टेबल. ऑफ कोर्स यू विल बी कैरिंग अ बैग विथ यू. सो आप किस तरीके का बैग कैरी कर सकते हैं, अगेन वेरी सिंपल, ब्लैक, बेज, ब्राउन, इस तरीके कलर आप बैग्स में यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ अवॉइड अगेन वेरी फ्लैशी कलर्स लाइक पिंक्स और येलो, रेड, these kind of colors you can avoid. Definitely you should avoid. मैं कुछ यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूँगी अगर मुझे मिलेंगे अबाउट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि किस तरीके के बैग यू कैन कैरी. एंड उसके साथ आप अपने इंटरव्यू में जाने के लिए आप अपना रेज्यूमे कैरी कर सकते हैं. रेज्यूमे एक फ़ाइल, सिंपल सी एक फ़ाइल में आप अपना रेज्यूमे कैरी कर सकते हैं, एक हाथ में एंड एक हाथ में. सो आप अपने बैग में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकिंग कैरी कर सकते हैं, मेकअप टू टच अप इन बिटवीन, लिपस्टिक, माउथ फ्रेशनर, योर डिओड्रेंट, परफ्यूम एंड सो ये सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं. हेयर स्प्रे, हेयर जेल एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप ज़रूर कैरी करिए अपने बैग में, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. बिकॉज इंटरव्यू यू नेवर नो कितना भी लंबा चल सकता है, तो आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप टाइम टू टाइम अपने आप को टचअप कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. So guys, thank you so much for watching this video. I hope you have learned something from this video. And to people who are about to appear for cabin crew interview, I wish you all the very best for your interview. And if you have liked this video, like this video, share, comment and subscribe.
I will see you on my next video. Till then, take care and bye bye.